Hello students, how are you all? A wonderful morning to all of you. Now this is your Neetu ma'am and welcome once again to the digital classroom of DSA. Now students, when I am being talking to your parents and what I am getting, you are not regular in your lectures, so beta just cover up your backlog, डेली लेक्चर्स देखो सो दैट आप क्रैश कोर्स की जो स्पीड है उसको कवर अप कर पाओ. सैटरडे संडे अब लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं तो आप उस बर्डन को सैटरडे संडे सॉर्ट आउट कर पाओ. जस्ट सॉल्व द क्वेश्चनरीज व्हाट आई एम सेंडिंग यू इन PDF and if again you are having any of the doubt, your Neetu ma'am is here to clear all your doubts. Just feel free to message me for your doubts. I'll clear all your doubts, but later in the evening. In the daytime we are busy in the shoot, so don't be panic कि reply नहीं आ रहा है. In the evening time I'll reply you. Okay, we have started sentence improvement in the crash course. Now sentence improvement में we have done the basic sentences. We have done some of the sentences of last year papers. Now again we'll continue with the last year papers sentence improvement sentences, and now let's start with the next sentence. Now we have done till 96 I suppose yesterday. Okay, so we'll start with the 97 sentence number 97. 96 तक हमने कल कर लिए थे. Now this is sentence number 97. Check out this. She cut a sad figure. She cut a sad figure. This is a phrase. This is a phrase. जैसे हम idioms and phrases कर रहे थे बीच में, तो this is a phrase. To cut a sad figure. But to cut a sad figure नहीं होता. Correct phrase is to cut a sorry figure. To cut a sorry figure. Now what do you mean by to cut a sorry figure? To cut a sorry figure means to be embarrassed. To be appear in a embarrassed way in front of everyone. आप embarrassed हो रहे हो, आप शर्मिंदा हो रहे हो. तो to cut a sorry figure means शर्मिंदा होना. Okay, now cut a sorry figure का मतलब है शर्मिंदा होना. Now read the sentence. She cut a sad figure in her first performance on the stage. Now समझ में भी आ रहा है स्टेज पे जो उसका फर्स्ट परफॉर्मेंस था. अगर यहाँ फर्स्ट परफॉर्मेंस लिखा है, synonym for first performance maiden. One more word I have given you for the first performance, that is debut. तो फर्स्ट परफॉर्मेंस जो उसका स्टेज पे था वो फ्लॉप शो हुआ. दैट मीन्स दैट पर्सन वॉज एम्बैरेस्ड, दैट पर्सन वॉज गिविंग अ फ्लॉप परफॉर्मेंस. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी वो, एंड वेरी डिसरिगार्डेड फॉर्म में वो स्टेज पे थी. तो उसके लिए टू दैट मीनिंग टू कट अ सॉरी फिगर इज द बेस्ट appropriate word or phrase to be supplied here. So the answer is to cut a sorry figure. Now check out the next sentence. Now last evening I went to the optician and bought spectacles. Now this is I. Last evening I went. Now see, last evening past tense, went past tense, to the optician. Who is an optician? Who is an optician? Optician, one who makes spectacles for you all. Now optician and bought spectacles. क्या ये सही है? क्या हम इसको और अच्छे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं? Let's check out. A spectacle, wrong. Two spectacles, उसको दो क्यों चाहिए? A pair of spectacles. So whenever we are writing, in the writing we have to use a pair of spectacles. बोलते समय हम spectacles बोल लेते हैं, okay, but when we are writing in the grammatically correct order, it should be a pair of spectacles. So the correct word is a pair of spectacles. Now I would like to avail a 15 days holiday this summer. Avail हमने किया है ये word. When I was teaching you pronouns, this is a reflexive pronoun. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ हम यूज करते हैं. अवेल वर्ड मैंने तब भी डिस्कस किया था. अवेल मतलब टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी, मौके का फायदा उठाना. ओके, आई गेव यू वन रूल विद दिस. अवेल, एंजॉय, डिस्गाइज, रिजाइन, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं कंपल्सरीली. जब भी वर्ड अवेल आएगा, अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर चाहिए. वन मोर थिंग, अवेल के बाद प्रेपोजिशन ऑफ भी आएगा.
ओके, तो अवेल के बाद प्रीपोजिशन ऑफ भी आएगा और अवेल के इमीडिएटली बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा. नाउ चेक आउट व्हाट इज द सब्जेक्ट आई. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? माई सेल्फ. नाउ टू अवेल ऑफ गलत, टू अवेल माई सेल्फ ऑफ गलत. आंसर इज नहीं, सॉरी, दिस इज राइट. टू अवेल माई सेल्फ ऑफ, I would like to avail myself of, क्योंकि of भी आ गया और myself भी आ गया. Now see this, to avail myself, इसमें of नहीं है इसलिए ये करेक्ट आंसर है to avail myself of. तो of भी चाहिए और reflexive pronoun भी चाहिए. Now we are starting paper number 2nd of year 2016. Pay attention. My old teacher gave many poor students money. ओके, मेरे ओल्ड टीचर ने बहुत सारे पुअर स्टूडेंट्स को मनी दिया. ओके, इन स्पाइट ऑफ ही वॉज पुअर. ओके, इन स्पाइट ऑफ ही वॉज पुअर. अब यहां पर इन स्पाइट का मतलब क्या आ रहा है? इन स्पाइट मतलब इसके बावजूद, इसके बावजूद उन्होंने उनको पैसा दिया, इसके बावजूद कि वो गरीब था, इसके बावजूद कि वो गरीब था. नो, इवन दो, एज इफ, हाउएवर या नो इम्प्रूवमेंट. हाउएवर जबकि, नो, एज इफ, नो. आंसर इज इवन दो. इवन दो, गरीब होने पर भी उन्होंने उसको पैसा दिया. नाउ सी, यहां ही किसके लिए है? ये ही ये टीचर के लिए है. चेक आउट द सेंटेंस. सेंटेंस ये कह रहा है मेरे पुराने टीचर ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पैसा दिया जबकि वो खुद गरीब थे. इवन दो ही वॉज पुअर. इवन दो से ही सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो रहा है, इंस्पाइट से नहीं. और इंस्पाइट हमेशा सेंटेंस में बिगिनिंग में लगता है, मिड में नहीं. और यहां ही इस सब्जेक्ट के लिए यूज है. ये पर्सन गरीब था लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पैसा दिया. ओके, तो आंसर इज इवन दो. नाउ यू शुड टू रीड द न्यूज़पेपर्स रेगुलरली इफ यू वांट टू बी वेल इन्फॉर्म्ड. नाउ शुड टू, इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? हमने रूल किया था जितने भी मोडल्स होते हैं, मे, माइट, शैल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, मोडल्स के बाद कभी भी TO2 नहीं लगता है. याद रखना, कभी भी TO2 नहीं लगेगा. मोडल्स के बाद TO2 नहीं लगता है. अब एक और मॉडल है ought to. ना ought to में to डिफॉल्ट एडेड है, इसके बाद आप टू नहीं लगा सकते. ये पूरा एक ही वर्ड है. ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. किसी भी मॉडल के बाद टू नहीं लगता. दैट मीन्स ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है. करेक्ट क्या होगा? ought टू के साथ आता है. यहाँ ought अकेला है तो ये नहीं आएगा. चलो, have to. should be गलत. पढ़ के देखो, you should be read. नो, should be के बाद V1 ing आता है हमेशा, तो should be गलत. Now what will be the correct option? Have to. You have to read the newspapers regularly if you want to be well informed. You have to का meaning आता है must. That means compulsion. That means करना ही चाहिए. You must या you have to means the same. Now check out the next sentence. If he had listening to me, he would not have gone lost. Now easy thing. हमने टेंसेस किए हैं. हैड कहाँ लगता है बच्चा? हैड लगता है पास्ट परफेक्ट में. पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 लगता है. क्या लगता है? हैड प्लस V3. ये क्या है? ING. तो ये तो गलत है. तो हैड listened me, no. Had listened me, okay. Had listened to me. So this is the correct answer. If he had listened to me, he would not have got lost. Now check out the next sentence. He asked for a bank loan. Also,
he didn't have sufficient resources. Now see the sentence, connection देखो, उसने बैंक लोन के लिए बोला, उसने बैंक लोन के लिए पूछा. Also मतलब साथ में, also मतलब साथ में. For example, I bought a dress and shoes also. Now also मतलब साथ में. Okay, यहाँ पे also का मीनिंग देखो क्लियर हो रहा है. Also he didn't have sufficient resources. साथ में उसके पास पैसे भी नहीं थे. No, वो रीजन दे रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं. That's why वो लोन ले रहा है. The answer is because. Because means giving a reason. So I hope you all have understood these sentences. Now we will move forward to the next sentence. So students, now check out the next sentence. The next sentence says that I went to the shop to buy some stationeries. Check out the spelling of stationeries. Check out the spelling of stationeries. We have done this in the confusing noun segment. In the confusing noun segment, I have taught you किस किस नाउन का प्लूरल बनता ही नहीं है. स्टेशनरी का प्लूरल रॉन्ग होता है. ओके, स्टेशनरी मीन्स बुक, पेंसिल, कंपास, एवरीथिंग विच इज नीडेड टू राइट एंड रीड. स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का प्लूरल नहीं होता. करेक्ट इज दिस, स्टेशनरी. वन मोर थिंग विच आई वांट टू कनेक्ट विद दिस. Check out the spelling of this stationery. What do you mean by this stationery? Which one is correct? This is correct. This is to confuse you. This means stable. This means stable. This is wrong. Correct is this. क्योंकि to buy, कुछ stationery का सामान खरीदने गया था. So this is stationeries. Okay. Again, this is wrong. I have been waiting here for the last 2 years. Now see, बार बार सारे rules recall हो रहे हैं. हमने since और for का rule किया है. Since means starting point of time. Since means starting point of time. यहाँ पर for means time duration, total time duration. Now check out this time duration for the last 2 hours. पिछले 2 घंटे से time duration दिया है. Have been waiting यूज किया है. Present perfect continuous tense है. For भी यूज किया है. So this sentence needs no improvement. This is no improvement sentence. Now check out the next sentence. The table needs to be painted. Table को painting की जरूरत है. The table needs to be painted. Now this is in the passive tense. Passive voice में to be आ रहा है. be plus V3 आ रहा है. Okay. The table needs to be painted. So this is no improvement sentence. Next is, it began to rain heavily just when I prepared to go out. Now see, sentence का tense कौन सा है? past tense. कैसे पता चल रहा है past tense है? Because V2 use है. V1 क्या होता है? begin. हमारा V2 use है. That means sentence past tense में है. बारिश होने लगी थी just तभी. कब? just मतलब at that moment. कब? जब मैं बाहर जाने के लिए रेडी ही थी. अब सेंटेंस पास्ट टेंस में है. पास्ट टेंस में भी आपको जस्ट दिया गया है. दैट मीन्स द होल सीन इज इन द पास्ट टेंस. रिमेंबर वी डिड द रूल कि अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है, देयर आर 2 verbs. One will be in the past, simple past V2. The other verb will be in the past perfect. और past perfect में कौन सा होगा? जो काम पहले हुआ होगा. ओके, टू क्लैरिफाई कि जो काम पहले हुआ है उसके साथ हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट. बट नाउ हियर, यहाँ पे आपको जस्ट दिया है. मतलब कोई काम पहले नहीं हुआ है. दोनों काम उसी मोमेंट पे हुए हैं. दोनों काम उसी मोमेंट पे हुए हैं. उसी मोमेंट पे हुए हैं मतलब सेंटेंस पास्ट टेंस में है. सो दिस इज रॉन्ग. यहाँ पे भी पास्ट टेंस चाहिए. दैट इज दिस. क्लियर? जस्ट पे अटेंशन टू दिस रूल. यहाँ दोनों काम एक साथ हुए हैं. कैसे पता चल रहा है? जस्ट दिया है. अगर कोई काम पहले हुआ होता तो इसमें एक में लगता पास्ट परफेक्ट. दैट इज जो काम पहले हुआ है उसमें लगेगा पास्ट परफेक्ट. ओके. नाउ द कपल सीम टू लव वन अनदर वेरी मच. नाउ फेवरेट सेंटेंसेस ऑफ यू ऑल.
कपल सीम टू लव वन अनदर। ऐसा लगता है, सीम मतलब लगता है कि कपल एक दूसरे से बहुत प्यार करता है। दे लव ईच अदर और वन अदर। दिस रूल वी हैव डन वेरी नाइसली इन द क्लास। हमने किया है ये रूल, और मैंने आपको ट्रिक भी ये दी थी याद रखने के लिए, द कपल लव ईच अदर। जब दो लोगों की बात है, दो लोगों के लिए हमेशा और हमेशा ईच अदर यूज होता है, वन अनदर यूज होता है मोर देन टू। आपको याद है ये रूल? फॉर एग्जाम्पल, द कपल लव ईच अदर, द ब्रदर एंड सिस्टर लव ईच अदर, members of the family love one another, boys in the class help one another। तो जब दो से ज्यादा की बात हो तो one another, सिर्फ दो लोग हैं तो each other। Remember, याद रहेगी ये चीज? Okay, now check out this, it is high time that we did something। बेटा ये रूल हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी किया है। देखो सारे रूल्स रिकॉल हो रहे हैं, चाहे वो टेंस के हों, चाहे वो होमोफोन्स के हों, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हो, चाहे वो फ्रेजल वर्ब हो, चाहे वो इडियम्स हो, सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं। नाउ चेक आउट हाई टाइम। आई गेव यू द रूल, अगर आपका इट इज हाई टाइम है, इट इज हाई टाइम मीन्स लॉन्ग अवेटेड इवेंट, भूलना नहीं, लॉन्ग अवेटेड इवेंट, बहुत टाइम से जिसका वेट हो रहा था। इट इज हाई टाइम के आगे हमेशा V2 या पास्ट टेंस यूज होता है। ओके, इसके अलावा मैंने आपको एक चीज दी थी, अगर वहां पे हो इट इज टाइम, हाई टाइम नहीं, इट इज टाइम, तो इसके आगे V1 यूज होगा, दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस यूज होगा। ये याद रखना दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस ना। यहाँ पर हाई टाइम है, यहाँ पर पास्ट टेंस का डिड दिया है, सो दिस नीड्स नो इम्प्रूवमेंट। दिस इज अ सेंटेंस ऑफ नो इम्प्रूवमेंट। नाउ चेक आउट दिस, इफ आई वर अ मिलियनेयर। हमने चेक आउट दिस, हमने कल ही ये रूल किया है, सब्जंक्टिव मूड दैट इज कंडीशनल्स। इफ आई वर अ मिलियनेयर, अगर मैं करोड़पति होती तो, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो, आई वुड हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करती, सब्जंक्टिव मूड। आई गेव यू द स्ट्रक्चर, अगर इफ है, सब्जेक्ट में आई है, तो यहां पे हमेशा वर लगेगा। अगर इफ और वर लगा है तो आगे सब्जेक्ट के बाद वुड लगेगा, यहां सब्जेक्ट चाहिए। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, यहां पे आई सब्जेक्ट है, यहां पर भी आई सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आई वर, आई वुड। ओके, चेक आउट दिस, I were, okay, I would have नहीं, I would have नहीं, I am capable of helping, I could have helped या I would help, this is the correct option, I would help, I would have helped नहीं, ये पूरा ही wrong है, I would help होना चाहिए। Okay, now check out this sentence, the training program was extended। Now what do you mean by extended? Extended means बढ़ा देना, elongate कर देना, बढ़ाना। अब उसका ऑपोजिट क्या होता है? curtailed। curtail मतलब छोटा करना, contracted दैट मीन्स छोटा करना। क्लियर? इसका ऑपोजिट एक्सटेंडेड। एक महीने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बढ़ा दिया गया है। फॉर मतलब फॉर अ टाइम पीरियड, ड्यूरेशन हमने अभी किया। सिंस और फॉर यूज होता है ड्यूरेशन के लिए, एक मंथ ड्यूरेशन दिया है, उसके साथ फॉर दिया है। सो दिस इज नो इम्प्रूवमेंट सेंटेंस। चेक आउट द नेक्स्ट सेंटेंस, द पेंटिंग विच दे वर लुकिंग एट वॉज डन बाय माई सिस्टर। नाउ विच, क्या हम विच के लिए वॉट लगा सकते हैं? नो। दैट लगा सकते हैं, whom लगा सकते हैं। चेक आउट दिस, क्या लगेगा इसमें? कौन सा सेंटेंस में लगेगा? विच लगेगा, दैट लगेगा, वॉट लगेगा। यहां पर विच इज करेक्ट, इट नीड्स नो इम्प्रूवमेंट। विच मतलब जो। ओके, तो वी हैव डन sentences till 112. I hope you have understood this. After this we'll move forward to the next sentence.